आई मीन ये वैल्यू अभी भी रीड नहीं कर पा रहा. ओके कैसे करेगा रीड? आपने कौन से ब्रैकेट यूज करे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, क्यों नहीं कर पा रहे आजकल के फ्रेशर्स इन क्वेश्चन को सोल्व? क्या मैं हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ या वो कर नहीं पा रहे हैं, नर्वसनेस आ जा रही है? ये कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया है क्या वैसे मैंने? ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की वजह से अपना वर्किंग सॉल्यूशन मत बर्बाद करिए. but like I'm not getting the like this component like which I made. I don't know why. That's why I said, na, you can directly use app.tsx. I'm not interested in your folder structure or anything. Okay. I'm interested in seeing the functionality working. That's it. Here we. So today we'll be doing a React.js machine coding round, a mock interview. This round is going to be of hard type, I would say. Hard for you because you're applying for an intern. Okay, not hard for any experienced guy. Apart from that, uh, we'll be discussing this problem. I'll be sending you a code sandbox link, and I just did. We'll be solving this problem. You can open the link. I will tell you the problem. Do you know about the Diljit concert that is ongoing in India? Yeah, I have heard of it, but like Yeah, so I don't have much idea about it. I've created a similar kind of problem. So what you have to do is you have to create a very minimum application. Okay, so you can just close this picture, or you can move this picture Okay. to picture. Yes. You can see here, just scroll down to display sections in the HTML page, right side in the preview, right preview may I have written everything. Yeah. This. Okay, so scenario is very simple. You need to build a booking system for the Diljit concert. The system allows users to book seats for the concert divided into 3 sections. Okay, the first section is VIP, second is general, third is economy. Now you can scroll down. VIP seats has a seat layout of 5x5 grid. Okay, general section has a seat layout of 6x6. Economy has a seat layout of 8x8. Getting my point? Yeah. Okay. I think it's pretty straightforward. And now go to next. So third condition is user can book only up to 5 tickets. That's it. 5 seats. There's a limitation of 5 seats per user. Okay. Now next, whenever user clicks on confirm booking, you need to show a pop-up, or you need to show an alert where you will show which seats are booked for that user. Okay. Now we will see the working solution. Just scroll down. Now you can click on edit seat. Click on 5 4 or 1 2. Now scroll down. Now you can see there are 5 rows and 5 columns. For the general section, there are 6 columns, and go below. 6 columns and 6 rows. Yeah. Similarly, for the economy, we have 8 columns and 8 rows. Now scroll more. Now click on confirm booking. Click on it. You can see VIP 1 1. VIP first row, first seat has been booked, and VIP first row, second seat has been booked. Okay. This is the functionality. You can go through it and let me know if you have any question. Okay, Ritik. So like maximum 5 seats I can book, right? I mean from all of these 3 categories, right? Yeah, you can try that also. Just choose 5. Okay, let's choose. And then let's choose. You can Okay. only book maximum of 5 seats. Okay, so I have like got alert. Okay. UI is up to you. You don't have to show something like green or red or something. Not, I don't want UI. I want the functionality only. Okay. Okay. Grid you can show. Grid 8x8 grid you can show, but I am more interested into functionality, not interested in UI at all. Yes. Okay, so like what I am able to think, like Please speak a bit loud.
Okay. So what I am thinking, I'm just thinking like how I can. Okay. So like, just can I go through the problem statement again, Ritik? Yeah, please. Yeah. Yeah, You okay. can take your time. Okay, Ritik. So like what I have understood, I mean, can I start coding based on that? Yeah, exactly. You can. Yeah. Okay. Absolutely. Uh, So you have 45 minutes. Do you think you will be able to complete this in 45 minutes? yeah. Okay. You can delete this working solution. Yeah. So basically, I'm making a component for the this ticket booking. Yeah. And now I will be returning. Yeah. Okay. Now let's also like export it so that I could use it in the other file. Okay. I think this is the main. Yeah, this is the main one. So I think I have to. Okay. So, Do you think you will be able to complete this? Have you ever done this type of project? no, actually, I have not implemented such thing. But yeah, like what I am thinking that. I mean, like how much I have studied in React, I'm thinking in React terms. So, Nice, nice, very nice. Yeah. In case you have any doubt, feel free to ask. Okay. okay, Ritik. Okay, so ओके, एक टिप देना चाहूंगा। हाँ ऋतिक। अगर कभी इंटरव्यू में ऐसे हो जाता है कि आप स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हो, फर्स्ट ट्राई इज टू ऑलवेज राइट करेक्ट स्पेलिंग एंड करेक्ट आइडेंटिफायर। ओके, बट इन केस आप गलत कर देते हो ना, तो उसको लास्ट में सोल्व करिए। अभी देखिए, आपने जितना टाइम इसको सही करने में बिताया है, इतना टाइम अगर आप मान लेते हैं नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को, तो उस टाइम आपको फिर रिग्रेट होगा कि यार मैंने उस टाइम वो नहीं किया होता। समझ रहे हो? Got it, Ritik. Ritik, this is the first component, na? I mean, app.tsx. हाँ, इस पे ही आपको रेंडर कराना है टिकट बुक। I don't know why. I mean, आप वैसे app.tsx को भी यूज कर सकते थे, बट आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट यूज इट। but like I'm not getting the like this component like which I made. I don't know why. That's why I said, na, you can directly use app.tsx. I'm not interested in your folder structure or anything. Okay, I'm interested in seeing the functionality working. That's it. got it. Got it. Okay, so like firstly, what I will do. Yeah, so so like we have seat layout, like we have VIP, then we have general section, then we have economy section. So for VIP section, yeah, Uh, okay, nothing. okay, so we have this.
I think I'm not able to think like this problem statement. I mean, like, should I have to use grid only, like, to show this seat allocation? वर्ड्स पे मत जाइए. ओके, थिंक ऑफ इट लाइक दिस. यू हैव टू शो 5 buttons in 5 rows. Okay, Okay. first row 5 buttons, second row 5 buttons, till fifth row you have to show 5 buttons. It means 5x5 is equal to 25. You have to show 25 buttons. Got it. But like, Got it? बट मैं जैसे सोच रहा हूँ ना, फिर मैं लाइक मैं एक बटन के लिए कंपोनेंट बनाऊंगा और फिर मैं उसी कोड को लाइक रीयूजेबल कर लूँ. गॉट इट, गॉट इट. अभी भूल जाइए उसको. जैसे कि मैंने पहले बोला था, फंक्शनैलिटी पे फोकस करिए. आपको कोड पूरा करना है. ओके. आप इंटर्न हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप अच्छा कोड लिखोगे, बट आप वर्किंग कोड लिखोगे ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. So let's so we have 5 by 5 grid now. So so फिर हमें एक स्टेट वेरिएबल चाहिए होगा मेंटेन करने के लिए. सो इंपोर्ट द स्टेट वेरिएबल. मुझे स्टेट from React. Okay. This use this. Okay. Okay. So we have this button. Okay. We have this. We have this button. And we have VIP section. Okay. We have this. Man. We can. What is ticket number? Yes, Ritik. What is ticket number? Okay. So like basically what I'm thinking कि like मैं ये जो नंबरिंग है ना, ये 5 by 5 का, वो मैं सोच रहा हूँ इस एरे में लाइक स्टोर कर लूँ. एंड फिर मैं उसको लाइक यूआई पे दिखा दूँ. ओके. तो इससे we have. देखिए, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, Okay. तो आप सिर्फ वीआईपी सेक्शन को भी रेंडर करा सकते हैं. आई एम ओके विद दैट. Okay. No, actually I'm not able to like break एक्चुअली down break down आप, the components. हाँ एग्जैक्टली यही मैं बोलने वाला था, क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. Yeah. यू हैव टू डू समथिंग. उससे क्या होगा, आपके तीनों के तीनों जो भी सिनेरियोज हैं कवर हो जाएंगे. Got it. Okay, so like ticket number we have. Okay, so like ऐसे अभी देखिए, ऐसे मत सोचिए. ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाइए, जो दिमाग में आ रहा है बना दीजिए, बस वर्किंग चलना चाहिए. okay. ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच.
एरे होता है मैप फंक्शन usually returns the element of array. What you have done, you have just one element inside array which is 25. So this will always return one element which is 25. एक्चुअली मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ऋतिक, मैं You मतलब want to create an array, right? यस, एंड मैं चाह रहा हूँ कि 1 to 25 मैं ये मैप के फंक्शन से मैं उसको लाइक रेंडर करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम 25 बटन्स तो नहीं क्रिएट कर सकते, वो तो लाइक ज़्यादा हो जाएगा। You can create 25 buttons. I will again say it. Focus on brute force approach, please. ठीक है? Optimize बाद में देखेंगे. ओके ओके, देन लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की वजह से अपना वर्किंग सॉल्यूशन, आवाज आ रही है ना? हाँ ऋतिक आवाज आ रही है। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की वजह से अपना वर्किंग सॉल्यूशन मत बर्बाद करिए. Oh, I think I will have to give you a hint. I will give it if you are not able to complete this. So for now, you can continue coding. ओके, ये कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया है क्या वैसे मैंने? आई डोंट नो, आई मीन मैं अभी लाइक रिएक्ट के टर्म में सोच नहीं पा रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। आई थिंक मैं ब्लैंक चला गया हूँ। ओके, क्योंकि ये सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है, काफी लोगों की दिक्कत है. आई थिंक लोग अभी फ्रेशर्स क्या सोच रहे हैं कि वो आएंगे, वो परफेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखेंगे, तो उसके चक्कर में वो वर्किंग सॉल्यूशन में नहीं लिख पाते हैं. नर्वसनेस बेसिकली. यस यस, देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका एक सबसे अच्छा बताने वाला हूं मैं. आंसर है ना, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है. ठीक है, तो हमेशा ऐसे स्टेप टू स्टेप चलिए. जैसे इंसान बताते हैं ना कि आपको पहले ऐसे पैर रखना है, फिर ऐसे पैर रखना है, किसी भी टास्क के लिए, किसी भी सिनेरियो के लिए, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं. तो पहले क्या आपको दिख रहा है? वीआईपी सेक्शन 5x5 ग्रिड. भूल जाइए बाकी फंक्शनैलिटी. आपको क्या करना है? आपको एक ग्रिड बनाना है 5x5 का. उसमें आपको 5 बटन दिखाने हैं साइड में, और 5 5 पर दिखाने हैं 5 बार. ठीक है, मतलब 25 बटन दिखाने हैं. दिमाग में ये रखिए कि आपको 25 बटन दिखाने हैं. तो आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स दिखाना है. मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ? आपको एरे ऑफ एरे दिखाना है. ठीक है, समझ गए? एरे के अंदर एरे डालोगे, उसके अंदर, उस एरे के अंदर 5 आपने बटन डाल दिए, या फिर 5 नंबर डाल दिए. फिर उसकी मदद से आपने मैप की मदद से उन बटन्स को दिखा दिया. बन गया आपका ग्रिड. समझ में आया? यस ऋतिक, नाउ आई कैन लाइक। फिर उसके बाद आइए सीट स्टेटस पे, कि आपको सीट स्टेटस बुक ऐसे करना है, वो करना है. एक बार आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली आ गया कि आपको आगे जाके ये फंक्शनैलिटी करनी है, तो आपको याद रहेगा. अब स्टेप टू स्टेप चलिए. ग्रिड बनाना है, ठीक है भाई, मैं जाऊंगा एरे ऑफ एरो बनाऊंगा, वहां पे बटन्स दिखा दूंगा 25. क्या बड़ी बात है इसमें? ओके, सो लाइक ये जो नंबर है वो मुझे एरे में स्टोर करना होगा, राइट? एग्जैक्टली. ओके, अप्रोच कोई और भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक अप्रोच बताई आपको कि कैसा आप कर सकते हो, क्योंकि आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो. तो एक हिंट दिया है मैंने. I think there is some issue with the code, like, okay. Ritik, like, do I need to code on this only, or like I can use the one कर that I, सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो जो जो भी आपको अच्छा लगे कर लो. okay, I think like, okay. So like, just I will like, okay. मुझे वर्किंग सॉल्यूशन चाहिए. ये क्या कर रहे हो? फिर से कोड सैंडबॉक्स खोल रहे हो? No, I think I have already created one. Like, I'm not creating in this one. ओके. Like, can I?
अरे जो मर्जी करो यार। बहुत ज्यादा नर्वस हो आप। जब फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे तो लग रहा था कि हाँ ठीक है, आप कर लोगे। पता नहीं एक्चुअली मैं मैं जो सोच के आया था वो वैसे मैं रिएक्ट के नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं भी, बट या आई एम ट्राइंग। कोई नहीं, ट्राई करो, मैंने हिंट दे दिया आपको। पता नहीं लोग कितनी गाली देंगे मेरे को, बट हाँ सिचुएशन तो सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, क्यों नहीं कर पा रहे आजकल के फ्रेशर्स इन क्वेश्चन को सोल्व। क्या मैं हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ या वो कर नहीं पा रहे हैं, नर्वसनेस आ जा रही है। आई थिंक स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम हम कम करते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो दिस वन ऋतिक, ये वाला। एक सेकेंड रुकिए पहले। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 5। व्हाट, इससे क्या मतलब है इसका? ओके, गॉट इट। अरे वो कॉमा क्यों नहीं लगाया आपने? कॉमा लगाना भूल गए ना? अच्छा, ये एरे के बाद। या 4 कॉमास। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारी कॉल एंड हो जाएगी, इसको ठंडे दिमाग से ट्राई करना, तो आप देखना आप आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर दोगे। यस यस, आई थिंक मुझे एक और लूप चलाना होगा, क्योंकि एक लूप तो हाँ रो का यस यस, रो का ट्रैक रखेगा और दूसरा लूप कॉलम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। आई थिंक तो आई थिंक but I have not used map. I mean, like this, I have used for loop. Okay. But I think can I use हाँ, आप इसके अंदर एक और मैप यूज कर सकते हो। okay. सो आप ऐसा कर सकते हो, नंबर 1 डॉट मैप, Yes, yes. फिर उस एरे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। Mm, नहीं आएगा ना यार, आपने रिटर्न ही नहीं किया है कुछ, क्या दिखाए हुए आप? रिटर्न कहाँ किया आपने? मैं ये कर रहा हूँ ऋतिक, ये वाला लाइन है। नंबर 1 को भी रिटर्न करिए, ऑनलाइन नंबर 15 वहां पे भी रिटर्न लिखिए। देखिए आपने दूसरे मैप से रिटर्न कराया है, पहले मैप से भी तो रिटर्न कराओगे। जब पहले में कुछ रिटर्न वैल्यू आएगी तभी तो स्क्रीन पे दिखेगी। रिलोड करिए उसको, मतलब सेव करिए पहले, वो पुराने वाला दिखा रहा है। हाँ अब सही है। ओके, आई मीन ये वैल्यू अभी भी रीड नहीं कर पा रहा। ओके, कैसे करेगा रीड? आपने कौन से ब्रैकेट यूज करे हैं? या आई गॉट इट, आई गॉट इट। आई थिंक मैं समझ गया। आई थिंक मुझे नंबर, नो नो, आई थिंक ये, हाँ, आई थिंक इसको हम आईडी बोल सकते हैं। आई थिंक IDX1, IDX2, so that is
क्या क्या किया यार ये आपने? गुड। गॉट इट तो आपने पहले भी बोला था, अब क्या समझे आप? मुझे लगा आप समझ गए क्या दिक्कत है। फाइनली आप समझ गए क्या दिक्कत थी। फाइनली, वेरी नाइस। Like number one is not defined. क्योंकि आपने नंबर 1 को इंडेक्स 1 बना दिया। Sorry. मेरे Okay. को एक बात बताइए, आप इसको एज ए एरे क्यों रेंडर करा रहे हो? ऋतिक, मुझे ये वैल्यू रीड करना है ना इसमें 1 2 3 4 5, तभी तो लाइक इसमें मैं इवेंट हैंडलर लगा सकता हूँ और ये चेक कर सकता हूँ कि लाइक इसका काउंट को लाइक कहीं पे हमें ट्रैक करना होगा। यू कैन डायरेक्टली यूज IDX1 एंड IDX2, तब भी वैल्यू दिख जाएगी। IDX1 लिख दीजिए सिर्फ, आपको देखिए फिर 1 1 1 लिखा आएगा हर जगह। सॉरी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। इंडेक्स 1 हमारा होता है ऊपर वाला एरे। आई थिंक ऊपर ये वाले एरे में पहली वैल्यू आई, हाँ हाँ ओके समझ गया, क्योंकि एरे रेंडर करा दिया ना उसने एज अ स्ट्रिंग। फिर तो कॉमा भी आना चाहिए था, कॉमा क्यों नहीं आया? हम्म मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि सिर्फ वन वन के लिए एक बटन बने, टू के लिए एक बटन बने। समझा नहीं मैं आपकी बात अभी भी। तो मतलब आप सिर्फ जैसे इंडेक्स 2 रेंडर कराइए ना, इंडेक्स 1 हटा दीजिए। इंडेक्स 1 हटाना था। ओके। कब नहीं है यार, आप बहुत नर्वस हो यार, कितने नर्वस हो रहे हो? ऋतिक, जब जब हम एलिमेंट को लाइक इसमें मैट्रिक्स ट्रैक करेंगे तो लाइक उसके रो एंड कॉलम भी होंगे ना कुछ, तभी तो लाइक हमें वो मिलेंगे ना एलिमेंट उसके। जैसे इसके कुछ रो होंगे, रो तो इसके इसका जीरो। है तो हमारे पास इंडेक्स 2 जो आपको दिख रहा है, ये यूनिक वैल्यू है तो। लेकिन मैं यहाँ तो यूज नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसको कैसे मिलेगा वो एलिमेंट, वो कैसे फाइंड करेगा? IDX1 तो लाइक सिर्फ लाइक ये आपके वाला। ऊपर है ना, देखो आप फंक्शन में क्या पास करोगे वो आपके ऊपर है, दिखाना आपके ऊपर है, दिखाना अलग पार्ट हो गया, पास करना अलग पार्ट हो गया। इंडेक्स 1 आपका हो गया रो नंबर, ये अब हमारी फर्स्ट रो हो गई। इंडेक्स 2 आपका हो गया कॉलम नंबर। सिंपल, कितना सिंपल है। आई थिंक मुझे एक और यूज करना होगा, राइट? अरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या ये इंडेक्स होगा? ये तो इंडेक्स की यूज करना है आपको। इंडेक्स से ही तो मैं एलिमेंट एक्सेस करूंगा ना ऋतिक, मतलब सारे एलिमेंट को। ठीक है, डू इट। एक बार आप इसको लाइव कर सकते हो, मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। शेयर पे क्लिक करके लाइव कर सकते हो। अ, ये ना। शेयर शेयर नहीं नहीं, नीचे नीचे, राइट में, टॉप राइट, कोड सैंडबॉक्स में। शेयर, हाँ, कन्वर्ट टू डेव बॉक्स, राइट साइड, क्लिक करो, कन्वर्ट। अब क्या होगा, ये आपको लाइव लिंक देगा जिसपे मैं एडिट कर सकता हूँ। देखिए, आपको, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। क्या आपको लग रहा है कि आप इसको कंप्लीट कर पाओगे? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल लाइक इसको नहीं सोच पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं एक बार आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाह रहा था कि मैं बता दूं कैसे आप इसको कर सकते थे, इसलिए मैं आपसे लाइव लिंक मांग रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं कोड करता हुआ दिख रहा हूँ आपको, राइट दिख रहा है ना? यस यस। तो ये देखिए, ये इंडेक्स नहीं है, ये हमारा रोल नंबर हो गया। ओके, पहली बात, लाइन नंबर 14 पे। और जो सेकंड था हमारा, वो हमारा हो गया कॉलम कॉलम नंबर। ओके, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं अगर हमें दिखाना है। वैसे दिखाने की ऐसे नीड नहीं थी, पर फिर भी अगर दिखाना है तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं।
रो और कॉल, ठीक है। अब देखो पहले पे हमें क्या करना था, हमें हर एक रो में दिखाना था इनको, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक div बना सकते हैं, div एज अ div रिटर्न करा सकते हैं इसको। और ये मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ, एज अ div हमने रिटर्न कराया, इसको मैंने यहाँ किया, ये रिटर्न है हमारा, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, और इसके आगे हमें div लिखना है, div हमने रिटर्न कराया है div को, सो div के अंदर हमने कोड लिखा है, काफी सिंटेक्स एरर आ रहा है। रो हो गया पहली बात तो ये, हाँ, अब हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। ओके ओके, पहले पे बट हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है, ओके समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे थे। ये हो गया हमारा रो नंबर, सॉरी, ये रो डेटा हो गया हमारे पास। हाँ, ये पूरा डेटा आ जाएगा उस रो का। एंड सेकंड वाला आई थिंक एक एक एलिमेंट के लिए हमें जाना होगा ना, इंडेक्स, हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो। वो जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई हम्म, बस। हाँ, तो अब क्यों नहीं आ रहा है ये, सो सॉरी सॉरी, रो डेटा करना था। हाँ, सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप ऐसे दिखाना चाह रहे थे, ऐसे दिखाना चाह रहे थे ना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, राइट। नहीं, अब ऋतिक है ना, अब रो डेटा में हमें रो डेटा और रो डेटा और ब्रैकेट नोटेशन रोटेशन में हमें रो पास करना होगा। एंड देन फिर, सॉरी, हाँ, एक बार और उसको आप इटरेट करोगे ना, रो डेटा डॉट मैप, हाँ ठीक है। अब कॉलम डेटा में फिर आप हमें एक और होगा ना, एक पैरामीटर हमारे पास जो हमें वो क्यों देगा। करना है हमें, क्यों चाहिए हमें। तभी तो मैं हर एक इंडिविजुअली एलिमेंट को लाइक दिखा पाऊंगा एक्सेस करके। इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते आप ऑन क्लिक लगा के। देखिए अब ऑन क्लिक हैंडलर आ गया हमारे पास, ठीक है, हमने इसका एक फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास कर देंगे अपना रो नंबर, ओके, और दूसरा हमें कॉलम। क्या चाहिए, कॉलम नंबर। तो रो और कॉलम हमारे पास आ गए, तो अगर मैं इसको अलर्ट कराता हूँ रो कॉल, तो देखना अगर मैं क्लिक करूंगा, मतलब आप ही क्लिक कर सकते हो, आप क्लिक करके तो मैं नहीं देख पाओगे, जब मैं क्लिक करूंगा, ओवरराइट कर देता हूँ। हाँ, आपको कोड दिख रहा है ना, हाँ, कोड दिख रहा है मुझे। तो आप रन करके देखिए एक बार खुद से, कहीं भी आप क्लिक करोगे आपको डेटा दिखना चाहिए। मेन यही था ना कि क्लिक करने पे हमारे पास डेटा आ जाए, कौन सी रो और कॉलम पे क्लिक हुआ है, राइट। तो ये देखिए अगर मैं पहली पे क्लिक करता हूँ तो 0th रो है और पहले वाले पे क्लिक हुआ है, फाइनल पे क्लिक करता हूँ 4th रो है, मतलब इंडेक्स वाली है ये, 4th इंडेक्स है रो का, और 5th पे क्लिक हुआ है यहाँ पे, समझ गए। ऋतिक, जैसे अभी आप डेटा दिखा रहे हो उसमें 1 1 हम्म 1 2, तो हम्म। लाइक लाइक हमें तो लाइक नंबर दिखाना था ना कि। पर मैं तो आपकी अप्रोच को सही किया है, मतलब आप कैसे कर रहे थे, आइडियल अप्रोच पता क्या रहने वाली थी वैसे इसकी, हाँ, आइडियल अप्रोच वो ये लाइक हम होने इंडेक्स वाला, हाँ, इंडेक्स के थ्रू लाइक हम उसको एक्सेस ये करके। होने वाली थी। देखो मैंने जैसा आपको पहले बोला था, ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपको एक सेक्शन डेटा बनाना था एरे का, उसके अंदर आपको 3 वैल्यूज मिलनी थी कि आपके पास कितनी रो होगी, हर रो में कितनी सीट होगी, और क्या नाम होगा उसका बेसिकली, उस एक सेक्शन का, बस। अब इसकी मदद से आपको सारी कैलकुलेशन करनी थी। आप इस कोड को देख सकते हो, अभी हमारे पास टाइम भी कम बचा है, तो एक बार मैं सीधा वर्डिक्ट पे आ जाता हूँ, ओके। फर्स्ट पॉइंट, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था आपसे कि आप थोड़ा सोचोगे फिर कोड लिखना स्टार्ट करोगे, बस स्टार्टिंग में ही आप इतने नर्वस हो गए मेरे ख्याल से, आप हमेशा ये सोचने लगे कि यार कैसे मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लिखूं इसका। बहुत ही गलत अप्रोच थी। जब भी आपको कोड लिखना है स्टार्टिंग में हमेशा ब्रूट फोर्स अप्रोच करनी है, मतलब किसी तरह कोड कंप्लीट हो जाए, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होगा बाद में देखी जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमेशा कंप्लीट करने पे फोकस करिए, आप ये मत सोचिए कि मेरे को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिखना है स्टार्टिंग से ही, ओके। सबसे पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड ये है यार, आपको नर्वसनेस का कुछ करना होगा, आप क्यों थे इतने नर्वस, मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, मैं इतना ट्राई कर रहा था आपसे बातचीत करने के बीच बीच में, बट आप फिर भी उसके अंदर घुसे हुए थे क्वेश्चन के अंदर, आप सोच रहे थे किसी तरह सोल्व हो जाए,
पर आप नहीं कर पाए, कोई नहीं। थर्ड ये आता है कि आप ज्यादा फोकस कर रहे थे नेमिंग पे इंस्टेड ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन। मैंने कई बार देखा, ठीक है, नेमिंग पे क्यों फोकस कर रहे हो यार आप वहां पे ऐसे एंगल ब्रैकेट लगा रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, फिर वहां पे वेरिएबल नेम लिख रहे हो, वो चल नहीं रहा है, क्यों कर रहे हो भाई इतना सब कुछ आप? समझ में नहीं आया मेरे को उस टाइम तो, मतलब करना क्या चाह रहे हो आप उस टाइम? वेरिएबल नेमिंग पे फोकस मत करिए। एक एक वन टू जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताई थी कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, उस पर फोकस करिए बस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ मैंने कुछ लिखा है क्या। ठीक है, तो उसके पहले आपका कोई सवाल है? हाँ ऋतिक, लाइक मैं इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहा था, लाइक मैं सोच रहा था कि लाइक रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ अप्लाई करूँ। जैसे मैं सोच रहा था लाइक पहले मैं किसी तरह वो लिस्ट को रेंडर करवा के फिर लाइक मैं उसमें ऑन क्लिक हैंडल लगा के फिर मैं चेक करूँ कि वो लाइक वीआईपी के इतने डेटा स्टोर कर लूँ और लाइक यूज स्टेट का यूज करूँ। बट लाइक वो वैसे हो नहीं रहा था क्योंकि लाइक मैंने उसको प्रॉब्लम को और लाइक स्प्लिट नहीं किया था, ब्रेक डाउन। तो आई थिंक लग ओके रहा है ओके। मैं वहाँ लैग किया। चीज हम्म। को लाइक मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ कि लाइक स्टोरी वाला में लाइक बिल्कुल मैं ब्लैंक चला गया था अभी। मुझे कैसे पता यार आप क्या बेटर करोगे? वो तो आपको पता होगा ना कैसे बेटर करोगे आप नहीं मतलब आपने ये क्या स्टोरी करोगे। वाले में, स्टोरी वाला में मैं तो लाइक समझा नहीं, स्टोरी मतलब? लाइक ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था ना, लाइक अगर मुझे इस टाइप को और बेटर तरीके से अप्रोच करना हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देखिए जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, ये वाली जॉब में आपको हमेशा यही मिलेगी, राइट। ठीक है। हमेशा ऐसी ही स्टोरी टेलिंग मिलेगी। इसको ठीक करने का तरीका तो यार देखो, सबसे पहला तो यही है प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे बिना किसी को देखे, बिना किसी ट्यूटोरियल को देखे, और वही मेरे ख्याल से एक लास्ट तरीका है एंड सबसे बढ़िया तरीका, मेरे को तो वही लगता है। एक प्रोजेक्ट ही ऐसा जो आपको खुद बनाने होंगे, और दूसरा होता है खुद का दिमाग। खुद ही यार दिमाग में आ जाता है कि मेरे को ऐसे करना है, इसको सोल्व ऐसे दिखा रहा है, तो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यार ये तो आपको प्रोजेक्ट बनाने होंगे, अच्छे खासे प्रोजेक्ट बनाने होंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे कि आप ट्यूटोरियल से ना देख रहे हो, खुद से बना रहे हो। खुद से आपने कोई प्रॉब्लम देखी रियल वर्ल्ड, उसको आपने सोल्व कर दिया, भले ही कोई मतलब ना हो उस प्रोजेक्ट का, वो बना के देखिए मजा आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दिलजीत वाला लिया है, दिलजीत का भी कॉन्सर्ट चल रहा है, आपके दिमाग में आया यार बुक माई शो पे कैसे बुकिंग होती है, मैं उसको बना लेता हूँ। कोड मत देखिए कहीं भी बुक माई शो का, खुद बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सिंपल सिंपल, जैसे सिंपल ही था, ठीक है। कोई ऐसे हाई लेवल नहीं बनाना है आपको।